Thank you so much. Okay, so I will start once again. That is, good morning to everyone. So currently we are studying on your paper 4, Unit 4, that is the analytical method validation topic. Out of that, we are already covered the few points from this particular topic. That is strategies to analytical method development. Then, what is why and what we are do the method development and method validation. Then we study the what is exactly method validation, and now currently we are on the particular point that we are studying the different points or subtopics in what exactly we are done during the method validation. So we have covered the few points from the method validation in previous lecture. Currently we are on this particular point, that is a robustness. What is exactly robustness, and that is the second last point, and then we will see the system suitability. So in during your last lecture, I have already read this particular slide and the lecture is cut. So we will continue again with the same slide. So what is exactly robustness? Robustness is defined as per USP, that is the robustness measure the capacity of analytical method to remain unaffected by the small but variation in method parameter. Okay, what is exactly robustness? That is the how much capacity to hold your method unaffected by the little bit changes in your different parameter. So robustness provides us some indication of the reliability of the analytical methods during your normal usage. The example of variation such as pH, temperature, mobile phase composition, instrumental setting, etc. Okay, so we will see the discuss exactly what is in robustness. So what is that? That is a it is a measure the capacity of analytical method to remain unaffected by the small variation in the method. अभी small variation क्या हो सकते हैं? What are these exactly the small variation in your methods? ठीक है, जानबूझ के तो हम लोग कोई वेरिएशंस करते नहीं, बट अननोइंगली देयर आर सम वेरिएशंस आर हैपन इन योर मेथड. तो आई हैव गिवन ऑलरेडी गिवन द एग्जांपल ऑफ योर पीएच एंड टेम्परेचर का. ठीक है, जैसे कि सपोज यू आर एनालाइजिंग योर विद द हेल्प ऑफ एचपीएलसी सपोज इंस्ट्रूमेंटेशन, एंड वी आर परफॉर्मिंग द विटामिन सी का एनालिसिस यूज दैट इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द लेमन जूस. सो द मोबाइल फेस तुम लोग का रहेगा, मैंने कुछ तो बोला था, मिथेनॉल प्लस एसीटोनाइट्राइल, एंड इमेजिन करो देयर इज अ वन बफर इन योर मोबाइल फेस. दैट मींस फोर डिफरेंट सॉल्वेंट. आउट ऑफ दैट वन इज योर बफर. द बफर का pH इज अराउंड 3.2, एंड व्हेन यू आर मिक्स ऑल द रिएजेंट, ठीक है, pH ऑफ द योर मोबाइल फेस शुड बी द 3.11. ठीक है, तो इट्स मे बी 3.1 या फिर द pH शुड बी द 3.14. ठीक है, सो वेन एवर यू आर प्रिपेयरिंग द मोबाइल फेस, ठीक है, इमेजिन करो कि उसके बाद यू हैव टू रन अराउंड 60-70 सैंपल्स एंड 60 मिनट या फिर 40 मिनट द रन टाइम फॉर योर एनालिसिस. तो इमेजिन करो कि तुम लोग को 2 to 3 लीटर का मोबाइल फेस बनाना है ह्यूज क्वांटिटी में. ठीक है, एंड यू आफ्टर प्रिपेयरिंग द मोबाइल फेस यू आर चेकिंग द पीएच एंड यू आर करेक्टिंग द पीएच. तो जब प्रिपेयर किया था तब पीएच था 6 पॉइंट जो भी बोला 6 पॉइंट 3.24 या फिर 12. ठीक है, 3.24 लेते. सो 3.24 पीएच तुम लोग को बोला है. अभी एग्जैक्टली 3.24 हमेशा ही नहीं आएगा, मे बी 3.2, क्योंकि वो फ्लक्चुएट होता रहता है. सो 3.24 होता है, कभी 3.23 हुआ, सो सपोज 3.26 होता है. ठीक है, लास्ट डिजिट इज लिटिल बिट चेंजेस. दैट मीन्स व्हाट द पीएच इज लिटिल बिट मे बी चेंज. सो is your little bit change affecting your retention time? It is affecting your pH, that is your peak broadening. It's affecting on your area, और इट इज शिफ्टिंग योर रिटेंशन, रिजोल्यूशन शिफ्ट हो रहा है. जो कुछ भी थोड़े बहुत चेंजेस हो रहे हैं वो अनअफेक्टेड होना चाहिए. दैट इज अ रोबोटिक्स. मतलब तुम्हारा मेथड इतना स्ट्रांग होना चाहिए कि ऐसे छोटे मोटे अगर चेंजेस होता है मेथड में, सो इट शुड नॉट बी अफेक्ट ऑन योर रिजल्ट. ठीक है, सो द मेथड शुड बी डेवलप इन सच अ वे दैट कि ये सारे चेंजेस तुम्हारे मेथड के अफेक्ट नहीं करने चाहिए. या फिर मैंने सेकेंड एग्जाम्पल बोला था कि विटामिन सी है, इट इज वेरी लाइट सेंसिटिव एंड टेम्परेचर सेंसिटिव भी है. सो वेन एवर यू आर डेवलप द मेथड दैट टाइम यू आर परफॉर्मिंग इन एसी रूम. ठीक है, उसका टेम्परेचर अराउंड 18 डिग्री सेल्सियस पे था. एंड देन तुम लोग कंटिन्यूसली एनालिसिस कर रहे हो, अभी समर का सीजन चल रहा है, अचानक से लाइट चली गई, नो एसी, नथिंग नथिंग नथिंग, बहुत टेम्परेचर है, 40 डिग्री सेल्सियस अराउंड एनवायरमेंट का टेम्परेचर है. सो डू योर टेम्परेचर अफेक्ट ऑन योर मेथड व्हेन यू आर परफॉर्मिंग द एनालिसिस? सो आइडियली इट शुड नॉट बी अफेक्ट. ठीक है, सो उसके लिए हम लोग को क्या क्या करना चाहिए, लेकिन मेथड में
इतना स्ट्रांग होना चाहिए, जैसे कि सपोज पीएच चेंज हो रहा है, ठीक है, कंटिन्यूसली, क्योंकि अभी हम लोग का पीएच 3.24 था, ठीक है। बिटवीन द एनालिसिस, मतलब एनालिसिस हम लोग कर रहे हैं, हम लोग ने रन टाइम लगाए 15 सैंपल के बाद हम लोग को पता चला कि आई एम रियली सॉरी कि आफ्टर 15 इंजेक्शंस के बाद 16 इंजेक्शन जब तुम लोग का चल रहा है, एट दैट टाइम योर रिटेंशन टाइम इज शिफ्टिंग, मतलब 6.2 पे जो तुम लोग का रिटेंशन टाइम था वो अभी 6.4 पे जा रहा है, ठीक है। तो 15 इंजेक्शन के बाद सारे जो है वो उसमें 6.4 जा रहे हैं। तो अभी तुम लोग को चेक करना है कि व्हाई एग्जैक्टली दिस हैपन, इज देयर एनीथिंग प्रॉब्लम इन योर कॉलम, इज देयर एनीथिंग प्रॉब्लम इन योर प्रेशर, इज देयर एनीथिंग प्रॉब्लम इन योर मोबाइल फेस। ऐसे हर एक चीज को तुम्हें फाइंड आउट करना पड़ेगा। हाँ, कि जैसे ही तुम लोग का 15 इंजेक्शन हो रहा है तो तुम्हारा कॉलम के अंदर में भी बहुत ज्यादा प्रेशर होने की वजह से कॉलम के ऊपर हाई प्रेशर आ रहा है। मतलब जो नॉर्मली तुम लोग का जब इंजेक्शन चल रहा था, सपोज इमेजिन करो तुम लोग का प्रेशर था 30 पीएस है ऑन योर प्रेशर पंप, ठीक है। लेकिन अचानक से 15 इंजेक्शन तो वो पंप पे इतना जोर आ चुका है कि इट इज गोइंग फॉर 35 पीएसआई तक उसका प्रेशर चला गया, ठीक है, या फिर उसका जो कुछ भी यूनिट रहेगा। तो बिकॉज ऑफ दैट हाई प्रेशर इट मे बी द तुम लोग का क्या हो सकता है कि रिटेंशन टाइम शिफ्ट हो रहा है। सो अभी तुम लोग को पीएच डिक्रीज सॉरी जो प्रेशर आ रहा है वो तुम लोग को रिलीज करना है। मतलब क्या है, तुम लोग मैक्सिमम जब इंस्ट्रूमेंट पे इंजेक्शन कर रहे हो दैट टाइम द प्रेशर इज इंक्रीजिंग। तो इसके पीछे रीजन क्या हो सकता है कि मे बी मोबाइल फेस प्रॉपरली फिल्टर ना किया हो, या फिर जो भी तुम लोग सैंपल इंजेक्ट कर रहे हो उसके अंदर कुछ तो पार्टिकुलेट मैटर में प्रेजेंट हो, या फिर कुछ तो ऐसा प्रेजेंट हो जो तुम्हारे कॉलम के ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर दे रहा है। बिकॉज डेफिनेटली विटामिन सी पास हो रहा है, कंटिन्यूसली ज्यादा इंजेक्शन होने के बाद प्रेशर बढ़ रहा है, इसका मीनिंग क्या है कि कॉलम के अंदर कुछ तो अटक रहा है जिसकी वजह से कॉलम के ऊपर बैक प्रेशर आ रहा है। सो डेफिनेटली सो देयर इज समथिंग इन योर सैंपल अपार्ट फ्रॉम विटामिन सी जो कॉलम को प्रॉब्लम दे रहा है, या फिर विच एक्चुअली रीजन फॉर द increasing the pressure on your column. So you again need to एक्सट्रैक्शन मेथड में कुछ तो और ऐसा डालना चाहिए जो कुछ भी तुम्हारे कॉलम को क्लॉक करने वाला है वो चीजें निकालना है। तो एग्जैक्टली कौन सी चीज हो सकती है वो कॉलम को प्रॉब्लम दे सकती है। सो उसको रिमूव करने के लिए हम लोग को एक्सट्रैक्शन प्रोसीजर में क्या क्या चेंजेस करना चाहिए। दीज आर द सम चेंजेस वी हैव परफॉर्म ड्यूरिंग द रोबोटनेस। दैट मीन्स इट शुड नॉट बी अफेक्ट ऑन योर फाइनल रिजल्ट। सेम जैसे कि अगर चेंजेस हो रहा है, पीएच देखा तो जब भी मैंने पीएच बनाया था तो वो 3.24 था, लेकिन अभी उसमें से मैंने स्मॉल अमाउंट ऑफ मोबाइल फेज निकाल के उसका पीएच देखा तो पीएच समझ इमेजिन करो 3.24 की जगह पे 3.20 हो चुका है, ठीक है, या फिर 19 हो चुका है। मतलब क्या है कि कंटिन्यूसली समकर का प्रेशर उसका पीएच चेंज हो रहा है। व्हाई? डेफिनेटली जब तुम लोग ने मोबाइल फेस प्रिपेयर किया होता, मैंने बोला कि 3 लीटर का मोबाइल फेस बना रहे हो तो प्रॉपरली सोनिकेट नहीं किया होगा आफ्टर प्रिपरेशन, या फिर जब तुम लोग ने उसका पीएच एडजस्ट किया था तब वो यूनिफॉर्मली मिक्सिंग नहीं किया होगा, तो स्टार्टिंग के यहाँ पे पीएच बहुत एसिडिक सॉल्यूशन रहा होगा, नीचे कुछ उसके अंदर गया ही नहीं होगा, तो यूनिफॉर्मली पीएच सेटल नहीं हुआ है। इट मे बी सो दैट्स व्हाई इट मे बी द इफेक्ट ऑन योर रिजल्ट, ठीक है। सो ऐसी छोटी मोटी चीजें हैं तो आइडियली इट शुड नॉट बी अफेक्टेड। तो ऐसे अफेक्ट ना करने के लिए जो भी छोटे मोटे चेंजेस आफ्टर डेवलपिंग मेथड हम लोग जो करते हैं दैट इज नथिंग द रोबोटनेस। दैट मीन्स अभी अभी ये along with this example just read that 2 points in your slide, that is a robustness measure the capacity of analytical method। मतलब तुम्हारी मेथड कितनी कैपेबल है कि ऐसे छोटे मोटे चेंजेस के लिए इट शुड नॉट बी अफेक्टेड। दैट मीन्स the robustness measures the capacity of analytical method to remain unaffected by the small but variation in the method parameter। मतलब ideally तुम लोग का pH 3.24 से if it is going for 3.20, और जैसे कि इमेजिन करो कि 4 प्लस मतलब कितना हुआ है 24 से 28 तक भी जाता है, स्टिल तुम्हारा उसका pH मतलब it should not be affect on your retention time of the peak। तो उसके लिए तुम्हारे मेथड में तुम लोग को क्या क्या चेंजेस करने हैं, या फिर ऐसा क्या होना चाहिए, दैट इज द रोबस्टनेस ऑफ द मेथड, ठीक है। पीएच शुड बी, टेम्परेचर शुड नॉट बी अफेक्टेड वगैरह, ऐसे बहुत सारी चीजें होते हैं। समटाइम्स कॉलम होता है कि आई एम यूजिंग एक कंपनी का कॉलम है, अभी मेरे पास वो कॉलम खराब हो चुका है एंड इमेजिन करो कि वो कंपनी बंद है, मैंने सेम कंपोजिशन वाला किसी और कंपनी का कॉलम लेते, so it should not be effect on your method। see definitely pH retention time exactly 6.2 ही नहीं आएगा, it may be 6.3 और it may be 6.1 हो सकता है। तो इट्स बट इट शुड बी द विद इन द लिमिट, जैसे मैंने बोला था कि इट शुड बी इन द रेंज, तो हमारा रेंज है +3 एंड -3, तो 6.2 की जगह पे अप टू 6.5 उसका रिटेंशन टाइम, या फिर 6 सॉरी
5.9 तक के बीच में अगर तुम लोग का पीक आता है तो अलाउड है, ठीक है, बिकॉज ये तुम लोग के रेंज दिया है, ठीक है, ड्यूरिंग। लेकिन वो रोबोटनेस ऐसा होना चाहिए कि विद इन द रेंज में ही तुम्हारे पैरामीटर बैठने चाहिए, इट शुड नॉट बी गो आउट ऑफ द लिमिट। स्टिल इफ देयर इज अ हैपन लिटिल बिट वेरिएशन इन, तो इसके लिए हम लोग रोबोटनेस में क्या चेक करते हैं, मतलब व्हेन यू आर एक्चुअली परफॉर्मिंग द रोबोटनेस, तो एनालिसिस में चेक क्या करते हैं, ठीक है, हम लोग लिटिल बिट पीएच चेंज करके देखते हैं। जैसे कि मोबाइल फेज का पीएच अगर 6.2 है, 24 है, तो इमेजिन करो कि मैं 6.20 6.28 पीएच परफॉर्म करके देखोगे कि इज माय पीक का रिटेंशन टाइम में चेंजेस, और पीक में कुछ ब्रॉडनेट आ रहा है, पीक स्प्लिट हो रहा है, मतलब थोड़े बहुत चेंजेस करने के बाद कुछ तो प्रॉब्लम आ रहा है। इमेजिन करो कि पूरा जो पैरामीटर चल रहा है, जब एक्सट्रैक्शन के लिए कुछ टेम्परेचर वगैरह लग रहा है या फिर कुछ मेथड लग रहा है, मिथेनॉल नहीं है, तो मिथेनॉल के सपोज इमेजिन करो कि 50% मिथेनॉल मोबाइल फेज में ले रहे हैं, तो 40% मोबाइल फेज में अगर मैंने मिथेनॉल लेती हूँ, तो इज अफेक्टिंग यूर मेथड। तो अभी मुझे पता चला कि मिनिमम जैसे कि सपोज इमेजिन करो कि 6.24 पीएच है, तो 6.27 तक अगर पीएच चेंज भी होता है, सो इट विल नॉट अफेक्ट ऑन यूर पीक, ठीक है। लेकिन 8 तक जाता है तो तुम लोग का पीक चेंज होता है, तो फिर तुम्हारा रेंज क्या होगा पता है, +and -3, बिकॉज ये आगे उसके आगे कुछ जाता है तो डेफिनेटली इट अफेक्ट ऑन यूर पीक। तो ऐसे सारे चीजें ना कनेक्टेड होते हैं, सो वी आर चेकिंग की रोबोटनेस ऑफ द योर मेथड, ठीक है। अभी जब तुम लोग एनालिसिस करो तो इमेजिन करो कि तुम्हारे सिस्टम में तुम लोग कुछ तो पीएच टेम्परेचर दे रहे हो ड्यूरिंग एनालिसिस, मतलब कॉलम का टेम्परेचर। जैसे कि अगर कॉलम को मैं 40 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर देती हूँ, तो मेरा एनालिसिस, मेरे जो पीक आते हैं वो बहुत शार्प आते हैं। तो इंस्टेड ऑफ दैट अगर टेम्परेचर 50 तक बढ़ता है, सो इज अफेक्टिंग और यूर पीक, ठीक है। या फिर 30 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर होता है कॉलम का, सो इज अफेक्टिंग और योर पीक। सो उसके लिए तुम लोग ये सारे छोटे मोटे चेंजेस करके देखोगे, मोबाइल फेज में थोड़ा सा वेरिएशन करके देखोगे, उसके पीएच में वेरिएशन करके देखोगे। जैसे कि सपोज एक्सट्रैक्शन के लिए तुम लोग मिथेनॉल यूज करो, instead of methanol, ethanol is also polar in nature and it is also organic solvent. So methanol के जगह पे अगर मैं इथेनॉल से एक्सट्रैक्ट करती हूँ, तो क्या इज इफेक्टिंग ऑन यूर सैंपल एक्सट्रैक्शन के मेथड में। ऐसे थोड़े बहुत चेंजेस हम लोग करके देखते हैं कि व्हाट आर द पैरामीटर्स, और उसका लिमिट कब तक है, कि जिसके आगे अगर हम लोग बियॉन्ड उस लिमिट के जाते हैं, देन योर मेथड इज अफेक्टिंग। एंड किसके आगे नहीं जाना है, that range decide karna is nothing but the robustness. So do you get some idea ki exactly what we are testing in robustness? Kajal, just write yes or no if you understand what is exactly robustness. Yes, Kajal, just write in chat box. Kajal, are you there? Kajal, yes. मुझे लगा ऐसे ही नहीं हो तुम. Okay. So we will move for the next, that is your last point. Okay. Then we will revise all the points systematically. So next is your system suitability. Okay. So what exactly system suitability? System suitability is the evaluation of the component of an analytical system to show that the performance of the system meets the standard requirement by the methods. Okay. So what is exactly system suitability? Is the evaluation of the component of the analytical system to show that the performance of the system is meet the standard required method. So what are the components? जैसे कि suppose you are performing vitamin C का analysis extracted from the lemon juice with the help of HPL, ठीक है। so उसके लिए component क्या रहेंगे, सबसे पहले component रहेगा तुम लोग का reservoir, ठीक है। उसके बाद are you using gradient system और isocratic system? तो gradient system use करते हैं, उसके चारों pumps working है, is we require all the 4 pumps, ठीक है। उसके बाद suppose you are using column, so which kind of column you are using, is this column is suitable, that is C8 या फिर C18, उसमें से मुझे exactly कौन सा column लेना है। जो भी मैं column use कर रही हूँ, उस particular column का validity कितना है, मतलब column कितना पुराना है या फिर fresh है, उसके theoretical plates कितने हैं, ठीक है। theoretical plates is actually showing the life of your column, ठीक है। so it should be in the within the prescribed limit, और वो ज्यादा हो चुके हैं
ऐसे सारे, या फिर सपोज तुम लोग का डिटेक्टर यू आर यूजिंग यूवी विजिबल डिटेक्टर या फिर पीडीए डिटेक्टर, तो लैम्प का एनर्जी कितना है, कितना होना चाहिए लैम्प का एनर्जी, उससे कम है क्या, ये सारी चीजें चेक करना इज नथिंग बट अ सिस्टम सुटेबिलिटी। इन शॉर्ट, जो सिस्टम तुम लोग एनालिसिस के लिए यूज कर रहे हो, your system along with the are all the part of your system are suitable for analysis of your particular sample or not, ये क्वेश्चन का आंसर फाइंड आउट करना इज नथिंग बट द सिस्टम सुटेबिलिटी। Our test procedure, the system suitability is a test will be performed on both the HPLC system to determine accuracy and precision of the system by injecting 6 injection of a solution containing analyte up to 100% test concentration। ठीक है, मतलब इट इज द सेम प्रोसीजर जो हम लोग जहाँ पे एक्यूरेसी एंड प्रिसीजन चेक करते हो। मीन्स व्हाट, अगर रिजल्ट एक्यूरेट एंड प्रिसाइज रिजल्ट आ रहा है, इसका मीनिंग क्या है, your system is perfectly suitable for your analysis। Suppose there is some problem in your accuracy and precision, that means there is something problem in your system, that's why when you are repeatedly doing the 6 injection, हर एक इंजेक्शन में वेरिएशन आ रहा है। क्योंकि इंजेक्शन में वेरिएशन क्यों आएगा, आइदर कुछ तो भी सेम सैंपल तुम लोग अगर रिपीटेडली ले रहे हो, मतलब सैंपल में कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा। ठीक है, जब तुम लोग 6 टाइम अलग अलग एक्सट्रैक्शन करके लोगे तो डेफिनेटली इसमें एक्सट्रैक्शन कम हुआ होगा, सेकेंड सैंपल में एक्सट्रैक्शन ज्यादा होगा, इसलिए पीक में या फिर एरिया अंडर कर्व में चेंजेस आए। लेकिन when the vial is same, सिंगल वन वायल में से you are performing 6 injection, मतलब सैंपल में कुछ भी वेरिएशन नहीं, तो वेरिएशन कहाँ पे आएगा, जो तुम लोग इंजेक्शन स्टार्टिंग से कहाँ से आ सकता है, जब तुम लोग इंजेक्शन कर रहे हो, मे बी सीरिंज ने प्रॉपर अमाउंट तुम लोग का सैंपल नहीं उठाया होगा। जैसे कि हम लोग को सपोज कितना लेना है, पॉइंट सपोज कितना सैंपल इंजेक्ट करते हैं हम लोग, 0.1 ml। ठीक है, इमेजिन करो कि 0.1 ml हम लोग या फिर 50 माइक्रोलीटर या फिर 20 माइक्रोलीटर हम लोग इंजेक्ट करें, अपने सिस्टम का 20 माइक्रोलीटर है। ठीक है, सो 20 माइक्रोलीटर इंजेक्ट करें, अभी तुम लोग का इफेक्ट फिक्स लुक सिस्टम है, सो यू आर वेरी लकी कि तुम लोग के एग्जाम में मार्क्स नहीं जाते। व्हेन वी आर इन खालसा, एक्चुअली हम लोग को जो इंजेक्शन था इट इज द सेम लाइक जीसी का इंजेक्शन होता है ना, सेम वैसे हम लोग को एचपीएलसी का इंजेक्शन था। So that time we actually measure the 20 microliter of sample and we need to inject in your column। ठीक है, so 20 के जब इमेजिन करो ऑटोमेटेड सिस्टम है जहाँ पे तुम लोग का इंजेक्शन ले रहा है, तुम लोग के इंजेक्शन को तुम लोग ने कमांड दिया है कि यू हैव टू इंजेक्ट 20 माइक्रोलीटर, लेकिन बाय मिस्टेकली इंजेक्शन ने कभी 20 के जगह वो 22 माइक्रोलीटर उठाया, कभी 18 माइक्रोलीटर उठाया, मतलब क्या, तब तुम्हारे पीक में वेरिएशन आएगा। so definitely there is a something problem in your injection variation, क्योंकि इंजेक्शन में भी फिट प्रॉपरली उसका जो पोजीशन है वो प्रॉपरली फिट नहीं हुआ होगा, या फिर उसकी जो सिरिंज है वो कहीं ना कहीं पे ब्लॉक हुई होगी, या फिर सिरिंज में कहीं ना कहीं पे एयर बबल अटका होगा। ऐसे बहुत सारे प्रॉब्लम हो सकते हैं जिसकी वजह से तुम लोग का यूनिफॉर्म वॉल्यूम सिरिंज जो है वो पिक नहीं कर पा रही। सेकेंड प्रॉब्लम कहाँ पे हो सकता है, जो भी तुम लोग का पंप है, इमेजिन करो कि कॉलम बहुत पुराना है, तो पंप पे ऊपर बहुत ज्यादा बैक प्रेशर आ रहा है, तो यूनिफॉर्मली सैंपल नहीं जा रहा है, तो उसके वजह से तुम्हारे सिस्टम तुम्हारे एरिया अंडर को में और पीक में वेरिएशन आ सकता है। नेक्स्ट ऐसा है कि क्या बोलती थी, प्रेशर हो गया, कॉलम हो गया, देन डिटेक्टर। ठीक है, लैम्प बहुत पुराना है या फिर लैम्प की एनर्जी कंटिन्यूसली लो आ रही है, या फिर जो पर्टिकुलर वेवलेंथ तुम लोग ने यूज किया है वो वेवलेंथ सुटेबल ही नहीं है, तुम लोग को एक्चुअली वेवलेंथ चाहिए था 280 और तुम लोग ने सिलेक्ट किया 276। ठीक है, सो इट मे बी इफेक्ट ऑन यूर एरिया अंडर को, बिकॉज उसने मैक्सिमम उसका लैम्बडा मैक्स कुछ और है एंड हम लोग वेवलेंथ कुछ और दे रहे, तो हो सकता है तुम्हारे सैंपल में कुछ ऐसा प्रेजेंट हो सकता है, या फिर प्रीवियस इंजेक्शन का कुछ तो कंटामिनेशन आके सेम पीक में तुम लोग का एरिया बढ़ गया है। तो इसका प्रॉब्लम क्या है कि पहला जो इंजेक्शन था उसमें से कुछ तो अटका था, एंड सेकेंड इंजेक्शन वो तुम्हारे विटामिन सी के साथ मिक्स हो गया, एंड पहले के पीक से ये पीक डबल अमाउंट में आ चुका है। ठीक है, तो दैट मीन्स सिस्टम में कुछ ना कुछ तो प्रॉब्लम है, तो वी हैव टू फर्स्ट क्लियर द ऑल द प्रॉब्लम्स फ्रॉम द सिस्टम, देन ओनली यू गेट द एक्यूरेट रीडिंग। सो सपोज प्रिसीजन एंड एक्यूरेसी टेस्ट में तुम्हारा सिस्टम पास होता है, that means your system is completely suitable for your analysis। Suppose नहीं होता है, that means you have to check all the parameter of your system, that where it is exactly the problem and why the result is not coming accurate, that is a सिस्टम सुटेबिलिटी। तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, सेम सैंपल के 6 इंजेक्शन, मतलब सेम, अगर तुम लोग का एक्यूरेसी का टेस्ट आता है तो वही डॉक्यूमेंट तुम लोग सिस्टम सुटेबिलिटी के लिए लगा सकते हो, बट यू रिक्वायर सम एडिशनल डॉक्यूमेंट ऑल्सो व्हेन यू आर actually make a file for your method validation। We will move for the next slide to understand that। So this is the point, same, I think it is repeatedly copy paste, that is 100% concentration। So parameter which we are determined during the system suitability, plate count। ठीक है,
I hope everybody know exactly what is plate count. Do you have any doubt in with respect to plate count? So I will clear here only. Nobody raising hands. Okay. Next, tailing factor, then resolution, reproducibility, and हर एक का क्या करेंगे वो percentage RSD of retention time, peak area and height of the 6 injection निकालते हैं. ठीक है. Plate count is nothing but the तुम लोग का theoretical plate होता है ना जो हम लोग ने concept देखा था, तो उसके हिसाब से when तुम लोग instrument पे देखते हो तो तुम लोग का जो HPLC का chromatogram होता है उसके वो जो बहुत सारे कॉलम होते हैं उसमें सबसे लास्ट वाला कॉलम होता है प्लेट काउंट. इसके अंदर वो थेरोटिकल प्लेट होता है 5000 10,000 15,000. सो हर एक कॉलम का एक लिमिट होता है कि 5000 से नीचे जाएगा तो कॉलम इज खराब. 6000 से हर एक का अलग अलग होता है. सो दैट इज द प्लेट काउंट. ठीक है, वो पर्टिकुलर विद इन द लिमिट है. टेलिंग फैक्टर, रिजोल्यूशन, हर एक पीक में प्रॉपर यूनिफॉर्म डिस्टेंस होना चाहिए. जब भी तुम लोग रिप्रोड्यूसिबिलिटी निकालते हो मतलब 6 टाइम जब तुम लोग सेम इंजेक्शन करते हो तो उसका आरएसडी और इसमें ज्यादा वेरिएशन नहीं आना चाहिए. इट शुड बी द लेस आरएसडी वगैरह होना चाहिए. क्या होता है वो 0.009 वगैरह समथिंग 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 ब्ला ब्ला. Okay, so these are the nothing but your system suitability. So documentation, that is a print chromatogram and record the data on your data sheet. Next, acceptance criteria. Following factors should be within the limit. Limit are specified to the method जो उन्होंने starting में specify किए हैं. Next, that is your retention factor, peak interest and resolution between the peak of interest and its closeness, evaluated peak, intermediate precision and percentage purity. These are the some parameter where they are checking during your system suitability. So here we are actually completed all the parameter which we are performing your method validation. सो डू यू गेट एटलीस्ट रफ आइडिया कि रफ आइडिया नहीं एक्चुअली तुम लोग को समझना चाहिए कि एग्जैक्टली व्हाट वी आर परफॉर्मिंग मेथड वैलिडेशन. फर्स्ट देयर आर 3 क्वेश्चन. सबसे पहले क्वेश्चन है कि मेथड डेवलपमेंट एंड मेथड वैलिडेशन में डिफरेंस क्या है, ये सबको पता होना चाहिए. ठीक है, बिकॉज इसके अंदर बहुत सारा गफला होता है. सो अभी हम लोग ने मेथड डेवलपमेंट भी देखा है एंड मेथड वैलिडेशन भी देखा है. So I hope you can easily differentiate what is exactly method development and what is exactly method वैलिडेशन. उसके बाद मेथड वैलिडेशन का और एक इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है कि व्हाट आर द एग्जैक्टली डॉक्यूमेंटेशन वी आर रिक्वायरिंग वैलिडेशन. वैलिडेशन इज नथिंग बट द डॉक्यूमेंटेड फाइल ऑफ यूर एनी एनालिसिस का मेथड. जो भी मेथड तुम लोग परफॉर्म करने के लिए यूज करने वाले हो वो मेथड एग्जैक्टली परफॉर्म इसका एश्योरेंस देने वाला जो डॉक्यूमेंट है. मतलब अभी जो कुछ भी टेस्ट हम लोग ने देखे हर एक टेस्ट का क्रोमेटोग्राम अलोंग विद देयर एनालिटिकल रिजल्ट, उसके जो हम लोग ने आरएसडी स्टैंडर्ड डेविएशन के जो भी कैलकुलेशंस किए अलॉन्ग विद द कैलकुलेशन उसका एक प्रिस्क्राइब लिमिट लेके जो पूरा डॉक्यूमेंट आता है वो डॉक्यूमेंट विद इन मतलब उसका जो लिमिटेशंस दी है उसको पास करके वो परफेक्टली एनालाइज कर रहे हैं नहीं, ये पूरा फाइल का डॉक्यूमेंटेशन वर्क इज नथिंग बट द मेथड वैलिडेशन. ठीक है, जिसके लिए हम लोग ये सारे पैरामीटर्स करते हैं. So these are the some parameters which we are using in method validation. उसके बाद next that is जैसे मैंने बोला कि documentation कि what exactly we are documenting, that is nothing but the next point of your syllabus, that is a legal requirement of your method validation which actually हम लोग वो assignment के लिए देते हैं लेकिन exactly assignment में क्या करना है उसके अंदर क्या लिखना है उसके लिए जो कुछ भी है because it is only 1 minute is left, so we will discuss this into the afternoon session. Then we will continue the next topic because उसके ऊपर मैं just discuss करूंगी hardly 10 minutes लगेगा. Then we will go for IQ, OQ, PQ. That is the next topic of your this particular unit. I hope here we are completed your analytical method validation. ठीक है, अभी टाइम नहीं लेकिन नेक्स्ट लेक्चर में within the 10 minutes I try to compile all the parameter along with the just briefly हम लोग क्या करेंगे रिवाइज करेंगे to understand and check the connectivity between the each and every point which is easy to understand exactly what happened in your method validation. So here we will stop because it less than 1 minute. I hope nobody is having doubt because nobody is raising your hands. So thank you so much for listening me and we will meet tomorrow. Oh, sorry, in afternoon session. Okay? Chalo, thank you and bye. So I stop here.